فرمایا پوچھنا آپ دے دن خیال ہے نماز دا پوچھے گا روزے دا پوچھے گا زکات دا پوچھے گا جہاد دا پوچھے گا حقیقت دا پوچھے گا طریقت دا پوچھے گا شریعت دا پوچھے گا معرفت دا پوچھے گا ریاضت دا پوچھے گا عبادت دا پوچھے گا طہارت دا پوچھے گا فقہ دی گل پوچھ لے گا لیکن وہ نویں گل کر چڑی انہوں نے کہے دوستوں میں آج کھانا کی ہے وہ دے ذہن خیال سی کہ مولا علی آکھن گے تو ہے کھانا تو میں نہیں کھاواں گا میں گھوڑ شے کھاواں گا کہ آ کے لوگوں نے آکھوں گا جی تواڈے مولا نے فرمایا کیا کھانا ہے کہ میں نہیں کھا کے آیا آپ نے فرمایا کی کہنا آپ نے فرمایا کی پوچھنا چاہنا کہنا میں کی کھانا ہے فرمایا تم آج دودھ چاول کھانے تے مجمع ٹوٹ کے کھڑا کہنا میں معذرت کہنا میری تواڈے نال ضد ہو گئی میں دودھ چاول نہیں کھاواں گا مولا نے فرمایا پھر مینوں بھی علی کہندے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ جی بڑھنی تے بولیا جی سبحان اللہ اچھا ملی گیا گھر بیوی نے پوچھتا کی پکائے کہندی دودھ چاول میں جو کہتا نہیں کوئی پڑھیا یقیناً بڑا بڑا لیا کہندی دودھ چاول کہتا میں نہیں کھانے انہوں نے کیا کھا قسمہ دسے جو کچھ ہے میں تمہیں دس دیتا ہے تو کچھ اور لیا کے دیتا تو میں تمہیں دیتا دودھ چاول پکے کہتا ہے گھر کو ہور شے ہے انہیں کو کچھ نہیں انہوں نے کہا چل رشتے دار لے کر میرے چاچے تایا لے کر اپنے پیکے لے کر کچھ ہے لے وہ گلی گلی پھری جس کر گئی دودھ چاول دودھ چاول دودھ چاول دودھ چاول پریشان ہو کے واپس آ گئی کہتی میں جیسے ویڑے گئی ہیں دودھ چاول لے کہتا ہے تو بچے صاحب میں آیا تھوڑی دیر کے بعد وہ دس سے خیال آیا مدینہ شی تو باہر نکلا گا کوئی قافلہ آ رہا ہوئے گا مدینہ پاک پاسے سے میں انہوں نے ڈاک کے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لوں گا آج دودھ چاول نہیں کھانے اب وہ جو مدینہ پاک تو باہر نکلا تو بڑا سارا قافلہ آ رہا ہے وہ دی پہلی سواری ڈکی تو سردار دی سواری کہتا سردار جی کی پکا ہے انہوں نے کہا دودھ چاول کہتا میں نہیں کھانے انہوں نے کہا تیری ایسی دی تیسی تو نہیں کھانے ایک تو ساڑھا تین جایا کیتا ہی دوجہ ساڑھے رزق دی توہین انہیں پنجا ستا بندیاں نے اشارہ کیتا انہوں نے کہا لمحہ پاؤ ہسانا مقصود نہیں مسجد میں کیا کبھی لگانا نہیں چاہیے لیکن مولا کی کرامت بتا رہا ہوں میرے مولا علی کا مرتبہ بتا رہا ہوں فرمایا نے لمحہ پا لو اور دو چونے نے لمحہ پایا ایک بندے نے دا منہ کھولیا دوجے نے دودھ چاول پائے تیجے نے کھتی تے ستی دودھ چاول اندر کوٹ بھی کھا دی تے دودھ چاول بھی کھا دے راج کھیت تہم کھلا کے جب واپس آیا نا مدینہ پاک اب مولا علی نے ملاقات ہو گئی فرمایا سنا کی کھا گئے ہیں کہندا جی دودھ چاول بھی کھا دے پر کٹ بھی بڑی کھا دی ہے فرمایا جی علی پاک دی من لگتا پھر کٹا نہ کھا دا بسم اللہ شاید یہ اتر جائے کسی دل میں کھڑی بات میں نے جڑے ٹاپک واسطے میرے بھائی نے حکم دیتا ہے میں وہ دو جملے تواڈے حوالے کرنا موضوع میرا کچھ اور ہے لیکن عمران بھائی مسلسل رابطے چلے پھر ایسا دیوانہ ہے جو رابطہ کر لیتا سی پھر بعد وچ فون بند میں سمجھا یار جب تک فلیکس نہیں بنی بندہ کوئی ایسا نہیں جہاں مذاق پیا کرتا ہے بھی مینوں کال کی جدوں میں بیک کال کروں اسی ٹائم فون بند یقیناً اج تو ویسے ہی بند لیکن اس کے باوجود تہاڈی محبت لو جی جملہ سنو اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا میں بی بی پاک کی بارگاہ میں چند قصے پیش کرنا چاہتا ہوں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی ماں کی شان پر آنسو بہاتے لوگ میں نے پوری دنیا میں دیکھے ہیں کاش سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں کوئی بندہ سبحان اللہ بولے مجھے پتہ لگ جائے تربیت کرنے والی ماں اندر سے بھی حسینی ہے باہر سے بھی حسینی ہے بات یہ مجھے چاہیے بہت شکریہ میرے بھائی کا حکم ہے اور بابا جی کو خراج تحسین جن کے سال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی توجہ رکھنا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا میں پتا ہے میں تسی سادہ لوگ بندے ہو میرا شیر کئیاں دے سر تو گزر جائے گا لیکن میں دوبارہ دہرانا چاہنا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے جناب سیدہ زہرا محمود غزنوی انج ممبر لا کے بیٹھا ہے جب حضرت تشریف فرما ان جو دے وزیر بیٹھے وہ دے مشیر بھی بیٹھے محمود غزنوی اٹھ کے کہتا ہے تو آڈے جو بندہ ایسا ہے جیڑا میں نے حضرت خضر کی زیارت کروائے ایک بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا بالوں دے بکھرے چہرے تے مٹی غربت دا ماریا لباس دا پھٹیا ہٹا ہوا تو کہنے لگا جناب میں تینوں زیارت کرواواں گا بادشاہ کہتا بابا اگر مینوں زیارت کروائیں گا مینوں کرنا کی پے گا انہوں نے کہا تخت چھڑ کے دریا دے کنارے کلی پا کے اے وظیفہ تو کر زیارت تینوں میں کروا دیاں گا بادشاہ کہتا بابا گل وہ کر جڑی کرنا لیے اگر میں تخت چھڑاں گا کوئی ہور آ کے بیٹھے گا مخلوق خدا دی خدمت دے وچ تھوڑی جی بھی ٹھل ہو گئی قیامت والے دن میرے پوچھا جائے گا اور کوئی مسئلہ دس کہ کرے تو یا کوئی اور بندہ
करे ज़ियारत मैनू हो जाए। उन्हें कहा फिर साढ़े नाल सौदा कर, कुली च मैं पवांगा। बाबा कह लगा वजीफा मैं करांगा, ज़ियारत तेनू हो जाएगी। बादशाह कहता मैनू की करना पेगा, कहता 6 महीने रोटी मेरे बच्चों तू दे। कबूल लो जी 230 चक लियो। मैं बड़ा परेशान भी होया तो बड़ा खुश भी होया। 2 जमा 3 जमा 0 5 बनता है। मैनू पता लग गया कि 5 दिन पाक की मुहब्बत तुहाडे अंदर क्यों है। तुहाडे पिंड में जमा किया तो 5 दिन पाक ही बनया, लेकिन तवज्जो रखी बड़ी मुहब्बत के नाल। तवज्जो मेरे बारे रखना। तो बाबा कुली च जाके बह गया। 6 महीने का राशन बाबे बादशाह ने घर भेजा। जो 6 महीने गुजर गए, उन्होंने कहा बाबे को बुलाओ भाई मैंने ज़ियारत करवाए। जो बाबा जी आए उन्होंने कहा बाबा जी ज़ियारत करवाओ। उन्होंने कहा जी ज़ियारत मैं तुहानू करवा छड़दा, लेकिन जी रात गुजरी है ना मेरा वजीफा पुठा पै गया, अगे पिछले हो गया। 6 महीने होर लगणगे। कबूल है? उन्होंने कहा जी मैंने कबूल है। हुण मैंने क्या की करा? उन्हें कहा 6 महीने रोटी मेरे बच्चों को दे। उन्हें 6 महीने रोटी होर भेजी। बाबे ने फिर कुली च जाके बह गए। 6 महीने होर गुजर गए। उन्होंने कहा बाबे को वापस बुलाओ, बाबा जी ज़ियारत करवाओ। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दी। उन्होंने कहा कदों मैं की गया? उन्हें कहा तू मैंने आख्या नहीं। उन्हें क्या आख्या तो ऐसी बादशाह, पर एक गल याद रखी बच्चे भुखे पे मरते सन। मैं कि तरीकाकार अपनाइए कि बच्चों की रोटी पूरी हो जाए। मैंने माफ़ नहीं कर देता। दरम्यान चुक वजीर उठ के कहता है, वजीरों को बड़ा शौक होता ना कि मैं इन्हों की नज़र च आ जावा बादशाह जी। उन्हें कहा बादशाह ने तेरे नाल मजाक किया है, इनू छुरी फेर, इनू छुरी फेर, बोटी बोटी कर। दरम्यान चुक बाबा जी उठे, सोना चेहरा। मेरा मौजू आ गया, मेरा मौजू खुदा के वास्ते टच हो जाना। 5-6 मिनट मैं तेरे लाने। सोहनिया जुल्फा, सोहना कद, सोहनी दस्तार, सोहनी चाल। बाबा जी उठ के खड़े हो गए। कहते बादशाह जल्दी कर इनू छुरी फेर। तो दूसरा वजीर खड़ा हो गया। कहता बादशाह मेरी मन, छुरी ना फेर, इनू कुत्तियां दे पा। बोटी बोटी होएगा, कुत्ते नोचण गए, इनू पता लग जाएगा इहदी नस्लां च भी बादशाह दा मजाक कोई ना करेगा। तो बाबा जी फिर खड़े हो गए। कहता इहदी गल ठीक है, जल्दी कर, कुत्तियां दे पा। तीजा बंदा उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा बादशाह का छुरी फेर ना कुत्तियां दे पा, इनू माफ नहीं कर देगा। बादशाह फिर बोलिया। उन्होंने कहा जल्दी कर। बाबा फिर बोलिया जल्दी कर, इनू माफ कर दे। बादशाह कहता बाबा छुरी फेरा या कुत्तियां के पावा या माफ करा तो बाद की गल है। तुसी दसो 3 बारी खड़े हो गए। उन्हें क्या छुरी फेर, तुसा के जल्दी कर। उन्हें आख्या कुत्तियां के बाद तुसा के जल्दी कर। उन्हें आख्या माफ कर दे, तुसा के जल्दी कर। तुसी कौन हो? उन्हें कहा मैनू छड़ मैं कौन हाँ? जिन्हें आख्या ना छुरी फेर, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਟੁਕੜਾ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾ, ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਆਲੇ ਰਸੂਲ है कि औलाद अली है? तवज्जो रखना। और बादशाह पूछने लगा महमूद गजनवी आजाद से, आजाद तू सैयद है? उन्होंने कहा मैनू छੱਡ, मैं तेनू दसना चाहना ये बाबा कौन है? उन्होंने कहा बाबा कौन है? उन्होंने कहा बाबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। बादशाह बोले महमूद गजनवी, बादशाह बोले महमूद गजनवी। कहता मेरे दरबार खड़ो के खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करवाने आ रहा, तेरा सिलसिला की है? आवाज आई चुप, तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरा सुना। नबी की बेटी नयाब ज़हरा। 2 शेर बस, मेहरबानी करनी। मेरा टॉपिक बोला हुसैन था। इमरान भाई ने मुझे हुक्म दिया, इमरान जी तुम मैनू देखो, छोड़ो सारा सिलसिला, ये बच्चे काम करेंगे यार किहड़े पासे लग गए, छोड़ो तुम। कोई 100 दे के 500 भी चुके तो अपनी फिक्र कोई नहीं। तो जो कोई 500 बजाय 1000 भी छोड़ दे तो ये भी गल कोई नहीं। लेकिन तुम मेरे वाले देखना, क्योंकि रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं। मैं भला किसी से क्यों मांगू, मुझको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। तो रखना जरा, मैं तुहाडे वास्ते आया, तुसीं मैनूं हुक्म दिता है, बिल्कुल तुहाडी मेहरबानी, तुसीं मेहमान नवाजी कर रहे हो ताकि कोई सजे खबे ना हो जाए, खुद इकट्ठे कर लगे। पर मेरी अख चक पा यार, मैं कहना की चाहना, हाथ चुक के बोलिया जी तैनूं पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा, जेड़ा नौकर ज़हरा है हाथ चुक के बोलेगा तैनूं पता नहीं ज़हरा दे, तैनूं पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा। नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, नबी दी बेटी नयाब ज़हरा, नबी दी बेटी नयाब ज़हरा है नाम इज्जत महाब ज़हरा। मेरी अकल दा फैसला है अली सवाले जवाब ज़हरा, तेरे हर एक चमन दे फुल नूं सलाम कर दे गुलाब ज़हरा। तेरे बच्चियां दा जिक्र कीते हां ढेर मिलदा सवाब ज़हरा। तेनू पता ही नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा, और चलिया तेनू पता ही नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा। जनाजे बड़े तके
दसा जनाजा ते फैसलाबाद च भी होया जनाजा मुमताज कादरी का भी होया 70 लाख लोग जो जनाजे च शामिल हो गए एक दूजे को पुछते एडा मजमा कितों आए ये जनाजा किसका है चुप तेन पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा तेन पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा बाबे फरीद के दरबार से लेके सखी सुल्तान बाहू तक सखी सुल्तान बाहू से लेके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जितना 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया पृथ्वीराज ने पानी बंद कर दिता और प्यादे के दिन बादशाह कह लगा तू पानी नहीं लेगा बाबा ना पानी होगा ना इबादत होगी बाबा कह लगा तुहाडे को मंगना ही कोई नहीं बाबा मंदिर च गया जुत्ती ले ला ते भगवान की कड़ ते मार के कहने चल पानी भर के लिया चल पानी भर के लिया तो जो रखना जरा चल पानी भर के लिया हजरात हाथ में करवा है लोटा है वो कूदा है जनाबे भगवान जा रहे हैं पिछो कड़ के जुतियां खाती जाता है आगे आगे टुरी जाता है आवाज आई बाबा तू कौन है तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां तेनू पता नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा वक्त काफ़ी हो गया है मैं अगले सना खान को दावत देता हूँ इसके बाद मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा मेरे भाई को हुक्म था यकीनन जिस शख्सियत के लिए आप अहबाब ने इस महफिल को सजाया बाबा जी दीन मोहम्मद साहब मेरा ईमान कहता है अगर दिल दे कन्न हो तो वो कबर के उत्ते जाके कन्न ला के पूछो बाबा आप तो कबर च पे आए मसीते तरह बारहा मरतबा जिक्र हो रहा है क्यों अंदरों बोलेगा तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा तवज्जो रखना ये सिर्फ मेरी गल नहीं हज़रत तशरीफ फरमा ने इधर भी हज़रत तशरीफ फरमा ने यह भी दुनिया के कोने कोने से फिर के इतना इलम तो सारे को आ गया सोशल मीडिया का दौर है इंज फरूकी आजम बैठे हो ना तो पुत्र आके कहता है अमीरुल मोमिनीन जी हाँ जी बोलो हुसैन फरमा रहे हैं तू साढ़े नौकर का पुत्र है हाँ बेटा किसने आख्या हुसैन पाक कितने थे हुसैन ये नहीं आख्या कि हुसैन को बुला के लियाओ ना जहाँ थे हुसैन चल के गए फरूक आजम तुसा फरमाया अगों भी बेनियाजी ने अली का पुत्र है ना अली का पुत्र है ना अली का पुत्र है ये नहीं ना कि अमीरुल मोमिनीन वेख के बादशाह ने वेख के उन्होंने ऐसा डर खौफ हाँ मैं आखे कौन है मैं वो साडा गुलाम है लिख दियोगे हाँ लिख देने लिखो फिर जनाब उमर को गुलामी में कबूल करो जब कबूल किया साइन हो गए दस्तखत हो गए फरूक आजम कहते हैं साहबा ये चिट रख लो जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे सीने पे रख के मुझे कब्र में उतार देना फरिश्ते आएंगे तो मैं कह दूंगा तुहानू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा अजे तक तुहानू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा अगली गल याद रखिया जे अगली गल याद फरूक आजम की बारगाह एक बीबी रोंदी आ गई मैं मसलक वाला बंदा जे मैं दोनों को लैके चल रहा तवज्जो रखना जरा फरूक आजम बैठे एक बीबी आ गई कहती या उमर थां मर गई मैनू बचा मेरा मालिक डाटा जालिम है अम्मा की होया कहती मेरे मालिक ने मैनू पैसे दिते मैं तेल लैन गई था मैनू ठुड्डा लगा है बुढ़ापा मेरा है मैं जमीन ते डिगी मेरी शीशी टुट गई तेल डुल गया जमीन ने चूस लिया हुण अगर मैं तेल ना लैके गई मेरा मालिक मारेगा ये नहीं आखे अम्मा तेन तेल मैं खरीदे फरमाया अम्मा चल मेरे नाल विखा कित्थे डुलिया चल विखा कित्थे डुलिया फरूक आजम पहुंचे माई कहती इत्थे मैं डिगी सा इत्थे शीशी टुटी है तेल डुलिया फरूक आजम ने पैर तक ठुड्डा मार के फरमाया है जमीन तेल मार कट तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा तेनू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा हज़रात दी वकार तेल का फुवारा बाहर आया फरूक आजम कहते अम्मा जितना तेल है वो अपनी शीशी च भर ले शीशी च भर के फरूक आजम दा चेहरा तक कहती लोगो तुहानू पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा तेनू पता ही नहीं सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा तेनू पता ही नहीं जेडे गोडियां ते हाथ रख के बैठे हो एक बारी दिल ला के कह दियो तेनू पता नहीं ज़हरा दे तेनू पता नहीं ज़हरा दे जनाब रोजी कल मुका देंगे हजरत जी कल बच जाएगी टाइम ज्यादा हो जाएगा लेकिन जनाब बिस्मिल्लाह जनाब अल्लाह आपको सलामत तवज्जो रखना फरूक आजम का दौर है ते एक नौजवान शराब बेचण दा पींदा भी सी ते बेचदा भी सी पींदा भी सी ते बेच सुनो हुसैनियों सुनो जो शराब भी पिए राती महफिल जल्दी खत्म हो गई तो असी इलाके तुर पे शहर चलो कोई न्याज तैयार करवाइए 3 जगह ते बेली बैठे सन साडे मलंग भरा 3 जगह ते पाइया चरसे एक बंदा पे पींदा मैं क्या वाह भाई वाह दमा दम मस्त कलंदर भंग भी अंदर चरस भी अंदर रहने ने बेटा हसाना मकसूद नहीं
ना मैं किसी के अकीदे को छेड़ने के लिए आया हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, ना मैं लड़ाने के लिए निकला हूँ। मैं उस अली को मानता हूँ जिसकी एक भी कदा नहीं हुई। कदा मौला अली को सवाल किया गया, या अली इधर जन्नत होवे इधर मस्जिद होवे, तुसी जन्नत में जाओगे या मस्जिद में जाओगे? फरमाया चुप कर जो, मैं मस्जिद में जाऊँगा। मैं उस मौला अली, मैं बाजार से चला गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है। कल याद रखे कि मौला अली का मलंगा मैं वो मलंग नहीं जे पक्का पीटा मलंगा को होर तरह का मलंगा फरूकी आजम बैठे ते उन्होंने दौड़ नौजवान शहजाद भाई इफरान भाई वो शराब का बड़ा आदी है, नाले वेचदा है, नाले पींदा है, नाले वेचदा है, नाले पींदा है, नाले वेचदा है, नाले पींदा है। इंतजार पे करता है कि अज शराब वेचांगा उदों जो इत्थे सूरज आ जाएगा, अरब की गर्मी होएगी, लोग डरते घर वड़ जाएंगे, मैनू तकेगा कोई नहीं, फरूकी आजम को शिकायत कोई नहीं लावेगा, अपनी विक जाएगी। उन्हें चंगी प्यारी जी शराब बना के बोतल च बंद करके ढक्कन से फिक्स करके इंज बगल च लैके उत्ते मोटी चादर लैके वेचण वास्ते निकलिया, उधरों फरूकी आजम आ गए। हुण सुभान अल्लाह ने कहना जिन्होंने पता मैं की कह रहा, तुहाडे ते ना परचा ना खर्चा, खर्चा ना साइयां ने कर दिया ते परचा हुण कोई नहीं, मजदूरी लैके बैठे। तवज्जो रखना जरा, मेहरबानी करनी है, जुमले ते बोलो तो मैं अपनी सीट ते बैठ जावां। अगों फरूकी आजम आ गए, हुण जो फरूकी आजम उठ गया ना थर थर करना लग गया, इंज कर नजर उठा के कहना मौला तेरे नाल वादा करना अज बचा लै, ना पीवांगा ना वेचांगा। सुभान अल्लाह बोले क़यामत की सुबह तक कुछ नस्लों च ना कोई वेचे ना कोई पिए। जेड़ा दोनों हाथ बुलंद करके बोले 25 साल की उम्र बढ़ जाए, जेड़ा उच्ची बोले 5 वक्त का नमाजी हो जाए, कुरान का कारी हो जाए, शहीद करबला का सदका ईमान की शहादत की मौत नसीब हो जाए। लेकिन तो रखना मैं अपनी सीट से तेरे नाल वादा रह गया, ना पियांगा ना बेचांगा, ना पियांगा ना बेचांगा। इन्नी देर च उसकी कफियत बदल गई, फरूकी आजम की अखां चथरू आ गई, वो कफियत देखे। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सन, फरमान जाना है कौन है? कि जी फलां नौजवान, ए मोटी चादर नहीं है तू? कहता हुजूर गर्मी बड़ी है। फरमाया गर्मियां च पतली नहीं है, मोटी नहीं है। कहता की है तेरे को? चादर ला। कहता हुजूर जान दे माफी। मैं चादर उतार, उन्हें चादर उतारी तो बगल च बोलता फरमाने ने की है डर गया, कहता दुध दे। फरमाया ढक्कन खोल, जो ढक्कन खोलिया तवज्जो रखना, फरूकी आजम ने इंज वेखिया, फिर वो वाल वेखिया, फिर इंज वेखिया, फिर वो वाल वेखिया। मौला ने तौबा कर ली, तेरी बारगाह च कबूल हो गई, बस बदल दे। फिर इंज तकिया ते जो ढक्कन खोलिया विचों शराब नहीं निकली, विचों दुध ही निकलिया। कद नहीं देख के कहता फरूकी आजम दे बेच नहीं निकला था, पी नहीं निकला था, शराब थी, दूध कैसे बन गया, शराब थी, मिर्च कैसे बन गया। आवाज आई तेनू पता नहीं ज़हरा दे अजे तक भी तेनू पता नहीं लगा चलिया सैयदा ज़हरा दे नौकरां दा। अज मैनू नेट ते एक जुमला पढ़ के बड़ी खुशी हो गई, मैनू नाम निहाद मुसलमानों के मुँह से थप्पड़ मारिया। अज दे ईसाइयां ने मरियम आबाद का वो मेला लाते सन, उस मेले च एक बार मैं भी गया था, पर मैं गया किसी हुक्मीयत ना था, उतों गुजर रहा था। मेरा दिल किया कि मैं भी अंदर जाके देखा। जो अंदर वड़े तो उन्होंने मेरी तलाशी ली, तो जेब चो शनाख्ती कार्ड निकलिया। उन्होंने कहा इफ्तिखार अहमद, मैं कहा जी। उन्होंने कहा इत्थे की रहना है? मुस्लिम हो? हम ईसाई हैं। मैं कहा हजरत मरियम सिर्फ तुहाडी मां है। पकड़ के अंदर तफसीर च नहीं मैं जाना चाहता, मेरी अखा चथू आ गई, मैं बाहर निकलिया। मैंने बेली पूछा रिज भाई तेनों कि गल हो गई अंदरों? क्योंकि मैं यार मैं मेला तक गया, उनके अंदरों सारा कुछ तक के आन के बाहर आन के रोन लगे। वजह की है? मैं गल याद रखी, वो हजरत मरियम की रोटी बंद हुई, जबरील जन्नत च मेवे लेके आए, तो जो जबरील को रोटी की लोड़ पई ना, अर्ज की मौला हुण किहदे बूहे ते जावां? आवाज़ इक्को ही बूहा है, हुसैन की अम्मी के दरवाजे पर चले जा। रोटी लैके जो जबरील निकलिया तो कहना पिया तेन पता नहीं ज़हरा दे नौकरां दा। कल याद रखो ईसाइयां ने एक बड़ी बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा शहादत इमाम हुसैन का दिन है, हम मरियम का मेला लगाएंगे। हाय मेला उन्होंने बंद कर दिया। वो इतने मंदे इतनी मोहब्बत वाले हो गए कि ना मानने के बावजूद उन्होंने हमारे ईमान को कबूल किया। कम अज़ कम कि हम आज हुसैन पाक के जिक्र की वजह से, शहादत की वजह से कोई ढोल धमक्का नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। साढ़े को सवाल किया जाता है क्या असीं मेहंदी रख लीए, क्या शादी कर लीए? असीं कितों कि मैं कि शरीयत मना करो शादी, लेकिन अगर तुम इश्क रखते हो, तेरे बाप का साल बाद उस दिन आ जाए, सालाना खत्म आ जाए, तेरे बाप की बरसी आ जाए, तेरे मुर्शद की बरसी आ जाए, तो तू कभी कसोड़ पूछे मैं पुत्र का ब्याह रख लवा। जब हुसैन की शहादत का दिन आता है तो ये सवाल ना किया कर, अंदर से हुसैनी बन के बोल कि मेरी हर खुशी जिक्र हुसैन पे कुर्बान है। अल्लाह मुझे आंसू दे
تو پھر ہمیں حسین کے آنسو دے. جب تیرے آنسو ملے تو لوگ تیرے آکھن تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا. میں دعوت لاشی